The galaxy is full of stars and planets, and we are having some of them here today. A very good morning to all of you. I, Mrs. Sapna Soni, SRG of Physics, extend to you all a very warm welcome on behalf of State Council of Educational Research and Training, Raipur, which has clubbed all of us here today for the in-service training program of 5 days, which is going to held from 27th August to 31st August 2024. The primary purpose of in-service training is to enable teachers to acquire new understanding and instructional skills. It focuses on creating learning environments which enable teachers to develop their effectiveness in the classroom. In-service training programs equips teachers up to date on various parameters like new pedagogies, emerging technology tools for classrooms, new curriculum resources, and more. The most powerful strategy school systems have at their disposal to improve teaching effectiveness is professional development. Teachers training programs provide an ideal platform for facilitators of education to release their innate creativity, share their knowledge, and learn from each other in a motivating and conducive environment. The best professional development is ongoing, experiential, collaborative, connected to, and derived from working with their teachers and understanding their thoughts. Dear teachers, as we know that physics is the interaction between matter and energy. So, here we are going to discuss on physical phenomena like the motion of matter and energy and force. Physics helps us to understand the world around us. It is the most fundamental part of science, and it is divided into classical mechanics, electromagnetism, modern physics, optics, acoustic, astrophysics, optics and nuclear physics, etc. It is the study of matter, energy, space and time. Physics helps us to study in microscopic level as well as in macroscopic level. So, let us begin our journey with this training schedule. Have a look. हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उनको एप्लीकेशन पार्ट से हम स्टार्ट करें, क्योंकि फिजिक्स ऑल अराउंड हमारे ही है। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं इस पिक्चर से, या आप अपना कुछ भी आपका अपना तरीका हो सकता है कि भाई हम देखते हैं कि आज पूरे विश्व में मोबाइल फोन, एंड्रॉइड फोन हम यूज कर रहे हैं, लैपटॉप है हमारे पास, साथ ही साथ ये प्रोजेक्टर हम देख रहे हैं, डेटा साइंस की आज डिमांड है, इंटरनेट फैसिलिटीज है, टीवीज है। टीवी अब नॉर्मल टीवी से हमारा जो रिप्लेस होते जा रहा है एलईडीज में, एलसीडीज में। तो भाई आखिर इन सबके पीछे कौन सी वह वस्तु है, कौन सा वह एलिमेंट है जो इन सबके कंडक्शन में बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है? जी हाँ, हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं आज सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की। तो आइए आज हम जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पे उस पर हम नजर डालेंगे कि आखिर सबसे महत्वपूर्ण रोल क्या अदा करता है। तो नेक्स्ट हम इसके इंट्रोडक्शन में आ जाए। इंट्रोडक्शन के बाद कि भाई आखिर सेमीकंडक्टर अर्धचालक विद्यार्थी पढ़ चुका है, हमने उसे चालक हम पढ़ा
12th में भी करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट 3 में हम पढ़ा चुके हैं, उनको पता है चालक और कुचालक के बारे में। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अर्धचालक की। तो एक समझ हम बना लेते हैं, अर्धचालक सेमी कंडक्टर। सेमी मीन्स चालक से थोड़ा कम होगा और कुचालक से थोड़ा ज्यादा, ठीक है। और किस क्रम में हम बात कर ले, तो जैसे कि हम पहले बात कर लेते हैं, अभी उनके पास कंसेप्ट है प्रतिरोधकता की और कंडक्टिविटी की। तो एक हम कंडक्टिविटी के टर्म में हम उनको बता सकते हैं कि भाई सेमीकंडक्टर्स वे मटेरियल होंगे जिनकी चालकता जो है चालक और कुचालक के बीच होगी, ठीक है। ये चीज उनको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि भाई जैसे कि जितने भी कंपोनेंट जो यूज हो रहे हैं वो क्या है, डायोड है, ट्रांजिस्टर है, आईसीस है, तो ये सभी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के एग्जाम्पल्स हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है, विद्यार्थी के मन में ये सवाल आना लाजमी है, भाई सेमीकंडक्टर क्यों, क्या कंडक्टर हमारे पास काफी नहीं थे, या क्या कुचालक जो पदार्थ है जिनमें कंडक्शन नहीं हो रहा था वो दोनों मिलकर क्या हमारे फिजिक्स की सारी जरूरतों को वो पूरा कर पा रहे थे कि नहीं, आखिर क्यों हमें इनकी जरूरत पड़ी। 1930 के आसपास सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की खोज हुई है, ठीक है। उससे पहले भी तो हमारा काम चल रहा था ना। व्यवहार में एक परमाणु पाया जाता है क्या, आइसोलेटेड फॉर्म में होते हैं, वो तो कहीं बहुत ही हाईएस्ट वो जो डिस्कवरी का आता है कि हिग्स बोसॉन जैसे पार्टिकल्स की एक्सपेरिमेंट और उस लेवल पर हम आइसोलेटेड, हाँ उस लेवल पर हम क्या करते हैं, आइसोलेटेड पार्टिकल्स हमको मिलते हैं। नॉर्मली तो हमको क्या मिलते हैं, क्रिस्टल्स, ठीक है। तो एक क्रिस्टल की जब बात होती है तब क्या वहां पर एक परमाणु है, ऑब्वियसली नहीं, वहां पर तो क्या है, वो क्रिस्टल परमाणुओं का समूह है। और एक मोल में आपको पता है कि 10⁻23 एटम्स, कितने एटम्स है। तो क्या होगा जब ये पूरे एटम्स एक साथ यानी कि कहां पर आएंगे, इंटरैक्ट करेंगे, एक दूसरे के रेंज में आएंगे। तो वही चीज हम यहाँ से बताने की कोशिश करें कि जैसे कि इस डायग्राम में हम देखें कि दो एटम्स एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के पास इंटरैक्शन, उनके बीच अन्योन्य क्रिया होगी और जिसके फलस्वरूप चलिए यहाँ पर इनको दो एनर्जी लेवल मिल गए। अब क्या होगा, यदि 3 एटम है तब ये इस प्रकार से मिलेगा, है ना, क्योंकि पॉली का प्रिंसिपल कहता है कि 2 इलेक्ट्रॉनों की एक एनर्जी लेवल होगी नहीं, स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स होंगे, इसलिए इनकी स्पेसिफिक एनर्जी लेवल है। अब यदि परमाणु में हम कितने मान लें, n परमाणु, क्रिस्टल में n परमाणु मान लें कि ये n एनर्जी लेवल्स बन गए। अब ये n एनर्जी लेवल्स का आपस में क्या होता है, वो बाय कक्ष के इलेक्ट्रॉन जो है क्या करते हैं, एक दूसरे से कटी जाते हैं, ठीक है। और ये जो कंटिन्यूअम बैंड बन जाता है, यानी कंटिन्यूअम ये जो क्या बन रही है आपकी, वो एनर्जी लेवल से है, वही क्रिस्टल के लिए किसका निर्माण करते हैं, बैंड का, ठीक है। उनको हम किस नाम से जानते हैं, बैंड। सबसे कम जो क्या आएगा, पॉइंट, यानी कहां पर होगा, कंडक्शन बैंड। अभी भी एनर्जी गैप में आप देख रहे थे, मैंने कहा कि हम सभी जानते हैं बैलेंस बैंड का मैक्सिमम और कंडक्शन बैंड का मिनिमम, तो वही चीजें हैं। फिर किसका हम लेते हैं, इसमें यहाँ पर होमो में हाईएस्ट पॉइंट और लिंगो में लोवेस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट इसका बैलेंस बैंड का, तो लेफ्ट हैंड साइड वाले कहां पर आएंगे, बैलेंस बैंड, राइट हैंड साइड कहां जाएगा, कंडक्शन बैंड। मीन्स इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी हमको पता चल जाती है। हम यहाँ पर केवल ये बातें करते हैं ना कि भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ है, देखा किसने है, ठीक है। मैं भी जब स्टूडेंट्स थी मेरे मन में भी ऐसे ही सवाल आते थे कि भाई देखा किसने है उस इलेक्ट्रॉन को। तो ये जितने भी हमारे मेजरमेंट हैं, इक्विपमेंट्स हैं, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक हम एनालाइज करते हैं वहां से हमको पता चलता है। डेंसिटी ऑफ स्टेट से हमको ओवरऑल सिस्टम में पता चलता है, देन पार्शियल डेंसिटी ऑफ स्टेट से एक पर्टिकुलर रीजन में भी। तो दोनों तरीके से स्टडी करके हम इसको निकालते हैं। तो यहाँ से नहीं वही मैं कह रही हूँ, मैंने आपसे परमिशन भी लिया था सर, परमिशन भी लिया था। मैंने कहा दीवान सर कहते हैं कि पहले ये पूरे कोवेलेंट बॉन्ड एक दूसरे से बंधी हुए हैं, आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, कोई फ्री नहीं है, तो 0 डिग्री केल्विन पर कंडक्शन 0,
लेकिन क्या होगा ऊष्मीय प्रक्षोभ पर एक कोवैलेंट बॉन्ड टूटा तो क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग हो गया और इलेक्ट्रॉन की कमी, ठीक है, नेगेटिव चार्ज की कमी मीन्स ऑब्वियसली वो कैसा बिहेव करता है, ऐसा पॉजिटिव चार्ज बिहेव करता है, आभासी है ना। तो ये हम यहाँ से ही कंसेप्ट होल क्रिएट हो गया, इसलिए हम नाम दे रहे हैं इसको क्या, होल या बीकर, ठीक है। अब जो सेमीकंडक्टर के अंदर है ये दोनों ही भाग लेते हैं कंडक्शन में, ये सब होल की टेंडेंसी क्या होगी, नंबर 1 यहाँ पर है, नंबर 2 में जब ये आएगा है ना, तब ये क्या करता है, होल कहाँ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो फिर यहाँ पर ये क्या हो गया, फिर होल क्रिएट हो गया। तो इस प्रकार से आप वहाँ पर होल का कंसेप्ट जो है इंट्रोड्यूस करेंगे। बाह्य अर्धचालक 2 प्रकार के एंड और पी, ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट आपको आ जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप। एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स, और उनका एनर्जी बैंड डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आप करने के बाद फिर हम जाएंगे पीएन जंक्शन डायोड में, और पीएन जंक्शन डायोड पढ़ाने से पहले भी या पढ़ाने के बाद भी हम जो करने जा रहे हैं वो एक एक्टिविटी ब्रेडबोर्ड हम सभी के लैब में है। कितने लोगों के लैब में है ब्रेडबोर्ड, आज तक आपने जो यूज किया है ऑलमोस्ट सभी के लैब में है ना, और हम कराते भी हैं। लास्ट ट्रेनिंग में भी जैसे मैंने ये इंट्रोड्यूस कराया था, ये इस प्रकार का होता है ब्रेडबोर्ड, नाम से स्पष्ट है, बोर्ड है जिसमें कि होल कैसे हैं, ब्रेड जैसे, तो इसलिए इसको नाम क्या दिया गया है, ब्रेडबोर्ड। और इसमें जो वर्टिकल जो कंपोनेंट है ये कैसे है, ये मेटल स्ट्रिप से इंटरकनेक्टेड है, वर्टिकल वन। यहाँ पर जो रहेगा ये दोनों लास्ट के एंड, ठीक है, लास्ट के एंड ये पावर सप्लाई वाला, ये दो आखिरी के जो दो है ना, इस साइड और इधर, ये पावर सप्लाई का काम करते हैं। लोअर में सबसे यहाँ वाला वो नेगेटिव टर्मिनल और उसके पहले वाला पॉजिटिव टर्मिनल। अब यहाँ पर इसका क्या यूज है, नॉर्मली हम शोल्डरिंग से करते हैं काम, छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट देते हैं हम बच्चों को, शोल्डरिंग का उपयोग करते हैं। दोबारा हम उपयोग कर सकते हैं क्या उसका, नहीं कर सकते। ब्रेडबोर्ड का फायदा ये है कि हम एक प्रोटोटाइप डिजाइन करके टेस्ट कर सकते हैं, और इसके बाद टेस्टिंग हमारी सफल रही, इज इट वर्किंग और नॉट, तो फिर हम कहाँ पर ले आए, आप शोल्डरिंग का यूज कीजिए, ठीक है, मेटल स्ट्रिप का यूज कीजिए। तो इसीलिए पहले हम ब्रेडबोर्ड पर सर अभी करें, जैसे देखा सेमीकंडक्टर का एडवांटेज यही है कि उसको स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, तो रूम टेम्परेचर पर भी ये काम हो जाता है कि सेमीकंडक्टर के कुछ बैंड वो टूटते हैं, तो यहाँ से जैसे हम देखें कि बैंड के टूटने से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जंप कर गए, ये कंडक्शन बैंड, तो इसीलिए इनसे क्या होता है, धारा का प्रवाह। और इसमें जो है सबसे, यानी किसमें कुचालक में चले जाए, इसका एनर्जी बैंड गैप कितना होगा, हम देखें सेमीकंडक्टर का 0.3 से 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का। यहाँ पर क्या होगा, मोर देन हम लेते हैं 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, हीरे के केस में 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अक्रॉस हमको बैंड गैप मिलता है, तो इतनी ऊर्जा मिलना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए इसमें कुचालक में क्या नहीं होता, कंडक्शन जो है इजिली नहीं होता। अब वहां पर भी पाते हैं, अब कुचालक ऐसे भी है जहां से कंडक्शन हो रहा है, और आपने नाम भी सुना है किसका सबसे ज्यादा, काम भी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा उसी पर हो रहा है ना। ग्राफिन की बात करें हम, ठीक है, तो ग्राफिन 2D मटेरियल, उस पर भी नहीं जाएंगे। कैसे हमारा इंसुलेटर कंडक्टर सबसे अच्छा कंडक्टर बने, तो उस पर भी गूगल के एक सर्च पर सारी जानकारियां हमारे सामने आ जाएंगी। और उस की बात मैं इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि एक मैंने प्रोजेक्ट अपने बच्चों से करवाया था, इसका यही ग्रे पेंट ग्राफिन पेंट, ठीक है, ग्राफिन पेंट मीन्स क्या, बच्चों ने ऑर्डिनरी उस पेंसिल को ही, ये नहीं कि ग्राफिन कहाँ से आ रहा है, पेंसिल को ही रब करके वो जो सर्किट, पेपर सर्किट बनाकर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन, एक अच्छा यहाँ पर क्या बनता है, प्रोजेक्ट बनता है बच्चों के लिए, है ना।
क्या होता है, सर ने भी जैसे बात की, जैसे ही हम साइज मिनिमाइज करते जाए, है ना, तो साइज मिनिमाइज करने से जो एटम्स हैं या क्रिस्टल्स हैं उनके जो गुण हैं उसमें ड्रास्टिक चेंज होते हैं, और नैनो टेक्नोलॉजी इसी पर बेस्ड है। चलिए, तो ये तीनों प्रकार के बैंड हमने बता दिया बच्चों को, संयोजकता बैंड, चालन बैंड, ऊर्जा बैंड, अंतराल। फर्मी ऊर्जा स्तर की भी हमने चर्चा कर ली थी। ये सब 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। फिर अर्धचालक के प्रकार, जो बेसिक चीज है ना। अर्धचालक कितने प्रकार के, तो भाई 2 प्रकार के होते हैं, नाम से स्पष्ट है, पहला शुद्ध और दूसरा हम नाम लेते हैं बाह्य। शुद्ध में क्या होगा, आवर्त सारणी के मोस्टली ये कौन से ग्रुप के एलिमेंट हैं, ये आउटर मोस्ट शेल में जिनके 4 इलेक्ट्रॉन चारों वर्ग में रखा गया है ना। तो ये आपके जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सारी चीजें जो है आ जाएंगी इसमें। सर नीचे से बैठ जाइए। प्रारंभिक स्थिति के साथ, तो अब ये इनिशियल पोजीशन है उसकी। अब ये रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ पे आया तो परपेंडिकुलर हो गया, फिर रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो जब ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेगा तो यहाँ पे कितने का एंगल सबटेंड करेगा, 2 पाई रेडियन का, ठीक है। तो अब ये देखिए कि 2 पाई रेडियन तो कितना बनाया, 360 डिग्री। मैं कभी भी बच्चों को पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री नहीं बताता, तो पाई रेडियन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री, ठीक है ना। मतलब पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री है, ये बच्चों को यहीं पर से क्लियर हो जाता है। मापन सब, इसमें 2-3 लाइन बड़ी अच्छी लगेगी। महत्वपूर्ण बात में जरा सोचें, एक बार के लिए कल्पना कीजिए कि मापन का कोई चीज हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम लोग यूज हो चुके हैं। सारे में हम समांतर अक्ष का और लंब अक्ष का क्रम का उपयोग करते हैं। इसके गुरुत्वाकर्षण एक प्रकार का हमारा रिलेटिव फोर्स रहता है। इसमें सबसे पहले हमारे जो न्यूटन साहब थे उन्होंने सेफ जो है पेड़ से नीचे ये और ये 90 है, पहले तो इसको बताया कि लंबवत है। अब ये फिर 90 कैसे होगा, जब इसको हम क्या लेंगे, फाई लेंगे, तब ये कोण अपने आप हमारा निकल गया फाई। तो ये फिर अगला पार्ट स्टेट में आ गया कि बच्चे को ऊपर का कोण निकाल करके बताना कि कैसे फाई। अब जब समझाने के ये फाई मतलब ये भी तो सब ऐसा ही है, तो ये भी इसमें क्या होगा, फाई हो गया। अब ये अब कोण आपको मालूम हो गया, 180 - 2 लंबा होगा। अब हम इसको बोलेंगे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में वियोजित करिए, तो dv1 को इधर वियोजित करेगा, आपको कल बताया था, इधर से जो एंगल बनता है उधर का, ये अपने आप को समझ गया कि dv1 cos फाई हो गया, और ये हमारा dv2 cos फाई हो गया। फिर बराबर और विपरीत हो गए, क्योंकि dv1 बराबर dv2 है, dv1 बराबर dv2 है, और हमारा वो cos फाई भी बराबर हो गया, क्योंकि कोण फाई से बराबर और विपरीत हो गया। अब इधर बोलेंगे इधर कौन सा कोण बनेगा, इधर फाई और इधर 90 में फाई बनेगा, फिर ये अपना हो जाएगा dv1 cos 90 - फाई मतलब dv1 sin फाई, और ये आपका dv2 sin। तो परिणामी कोण का b बराबर क्या आ गई, b = dv1 sin फाई प्लस dv2 sin फाई, और dv1 और dv2 बराबर आ रहा है, इसलिए b बराबर, इसको हम लिख देते हैं समेशन dv1 sin। कोई डाउट है तो बताइए। परिणामी बढ़ाते हैं, वोल्टेज का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ये फॉरवर्ड बायस